Hello students, I hope you are going strong and you are doing well. Last lecture में so let us reconnect quickly. अपन ने बात की spherical mirror की. So I hope अपन सब clear है what is spherical mirror, what is elliptical mirror, what is cylindrical mirror and what is parabolic mirror. तो ज्योमेट्री ऑफ सरफेस विल डिसाइड द नेम ऑफ अ मिरर. दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स. बेसिक टर्म्स अपन ने देख लिए एंड लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट relation between focal length and radius of curvature. I hope you remember it. It is f is equal to r by 2 for paraxial rays. दो बातें बताई, कुछ नहीं स्पेसिफाइड हो तो we assume mirrors are small aperture mirrors, small size mirror. And I hope आपको याद होगा aperture से we have an idea about mirror. उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ नहीं दिया हो तो रेज अपन क्या assume करके चलेंगे, paraxial rays. So f is equal to r by 2 and I hope you also remember the general relationship f is equal to r minus r by 2 sec theta, where theta is angle of incidence. Most important part of the total analysis was that is as the angle of incidence increases focus shifts towards pole and there was a very specific case. बच्चों याद होगा आपको जब मैंने थीटा 60 डिग्री ले लिया था तो पोल ही फोकस हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गई थी, 0. ओके फिर अपन ने साइन कन्वेंशन की बात की जिसमें मैंने बार बार आपको कहते हैं अलर्ट किया है. सो आई गिव यू अलर्ट टुडे आल्सो. साइन कन्वेंशन, बी वेरी केयरफुल एंड आई रिपीट, पोल ऑफ द मिरर विल बी टेकन एज ओरिजिन. सारे डिस्टेंसेस वहीं से मेजर किए जाएंगे. डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव. Distances measured above principal axis positive, below principal axis negative. So with this we come to know that focal length of concave mirror is always negative and focal length of convex mirror is always positive. Concave mirror का फोकस जो होगा हमेशा सामने होगा और convex mirror का फोकस हमेशा पीछे होगा. राइट स्टूडेंट्स, तो बच्चे आज मसले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे. एंड I also remember अपन ने बात की थी how do we construct image in spherical mirror. For image construction we just need to take any two rays क्योंकि image is the point of intersection of reflected rays. वो अपन ने 4 रे डिस्कस की थी and there was one thing which is very important, principle of reversibility of light. लाइट का पाथ रिवर्सिबल होता है. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिरर इक्वेशन और मैग्निफिकेशन की बात करेंगे. ओके तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चे दिस थिंग, मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला, ओके सो दिस इज बेसिकली object image distance formula. Object image distance formula and it is very simple, 1 over v plus 1 over u is equal to 1 by f and this we can also write 2 upon r. So this is our mirror formula. So let's understand each and every symbol very properly. बात कर रहे हैं बच्चे मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन. So this basically connects object distance and image distance. तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे v जो है this is image distance and u over here is object distance. And of course f we are familiar, this is for focal length and r is for radius of curvature. प्यार से देखें बच्चे मिरर फॉर्मूला. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिस्टेंसेस अपन कहां से मेजर कर रहे हैं. वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, सो दैट्स अंडरस्टूड. सो दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला. अब इस मिरर फॉर्मूला को बहुत ध्यान से समझना है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहली चीज जो अपने को समझनी यहाँ पे, दिस इज applicable
for both type of mirrors. Both type of mirrors. Both type of mirror का मतलब हो गया convex as well as concave. That is one thing. This is applicable for both type of mirror, convex और concave. तीसरा पॉइंट जो अपने को समझना है रिगार्डिंग मिरर फॉर्मूला, दैट इज दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया बच्चे, अपने को पता है दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल एंड वर्चुअल. And for all positions of object. तो बच्चे दिस इज जनरल मिरर फॉर्मूला. सो मिरर फॉर्मूला मीन्स इट इज फॉर स्फेरिकल मिरर, वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट रियल हो या वर्चुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, फॉर ऑल पोजीशन. ओके, now this thing is very very important while using mirror formula. Known quantities will be substituted with sign. Which sign? As per sign convention. This is very very important. Known quantities, जो quantities अपने को पता है, they will be substituted known quantities, and unknown quantities will not be given any sign. That's the point. Unknown quantities will not be given any sign. This is very very important point regarding mirror formula. आप इसे जब भी यूज करेंगे, known quantities will be substituted with sign. ये आज मैं लिख रहा हूं बच्चे, आगे नहीं लिखूंगा. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितनी भी रिलेशंस अपन पढ़ने जा रहे हैं, दे आर ऑल फॉर पैराएक्सियल रेस, क्योंकि अपना एजम्पशन यही है, मार्जिनल रेस की हम बात नहीं करेंगे, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस. मिरर फॉर्मूला ध्यान दें बच्चे प्यार से. तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर फॉर्मूला. सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला बच्चे? मिरर फॉर्मूला क्या करता है? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को कनेक्ट करता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप? इट इज सिंपल, 1/v + 1/u = 1/f = 2/r. So f is standing for focal length, r for radius of curvature, v for image distance and u for object distance. ये कहने की जरूरत नहीं है. These distances are measured from the pole of the mirror. खास बात ये है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स. सो दिस इज जनरल, एप्लीकेबल फॉर एनी स्फेरिकल मिरर. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल हो या वर्चुअल, फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है. सो दिस फॉर्मूला इज कंप्लीटली जनरल फॉर्मूला. ध्यान क्या रखना है? दिस रिलेशन यानी मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस. पैराएक्सियल रेस के लिए वैलिड है बच्चे. और ये मैंने आपको बताया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितनी भी रिलेशंस अपन पढ़ेंगे, सारी की सारी रिलेशंस जो हैं दे आर वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान दें. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. What is the instruction? Known quantities. जब भी आप इस मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे, known quantities will be substituted with sign. Known quantities will be substituted with sign. Okay, students. So moving further, and
Now there are few special things that you have to take care, and okay, so here we go. Suppose we change, and this I call it, we can put it under remark. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान दें. Now suppose we change our point of reference. हम ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ना मेजर करके कहां से मेजर करें? फोकस से मेजर करते हैं. So suppose I take a concave mirror and let's say this is the object A B, और इसकी इमेज यहां बन गई A डैश B डैश. तो बच्चे आपको पता है इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस वी आर गोइंग टू कॉल इट U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दिस वी आर गोइंग टू कॉल इट V, इमेज डिस्टेंस. ये पोल है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब एक काम करते हैं, फोकस ले लेते हैं. सपोज आई टेक फोकस. नाउ दिस इज योर फोकस. तो मैंने डिस्टेंसेस कहां से ले लिए? फोकस से ले लिए. सो नाउ दिस आई कॉल इट x1. दिस आई कॉल इट x1. x1 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. और ये मैंने ले लिया बच्चे x2, इमेज का डिस्टेंस. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क. सो आई कॉल इट रिमार्क 1. इसको ध्यान से बच्चे देखें. कुछ नहीं दिया हो तो डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे? पोल से. अभी अपन ने ले लिया. अब आप क्लियरली देख सकते हैं जिसको आप V कह रहे हो, सो या U कह रहे हो, आप अगर देखें U कैन बी रिटन एज x1 प्लस f. सिमिलरली V कैन बी रिटन एज x2 प्लस f. Remember x1 क्या है? Distance of object from focus. So this x1 is distance of object from focus. Similarly x2 is distance of image from focus. बहुत सिंपल है, दिख गया बच्चा, आप देख सकते हैं क्योंकि ये तो फोकल लेंथ होगा. दिस इज फोकल लेंथ. डायग्राम पे ध्यान दें तो आप देख रहे हैं x1 प्लस f becomes U and x2 प्लस f becomes V. डायग्राम से चीजें बहुत क्लियर हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ आवर लेंस मिरर इक्वेशन इज 1 by V. So x2 plus f plus U, x1 plus f is equal to 1 by f. मैंने मिरर फॉर्मूला में V और U की वैल्यू पुट कर दी है, कुछ भी नहीं किया है बच्चे. आई हैव नॉट डन एनीथिंग, सिंपली सब्स्टिट्यूटेड. बट ध्यान ये रखना है V क्या है? इमेज डिस्टेंस. U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने चेंज किया x1 एंड x2. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास एक रिजल्ट आता है x1 x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला. सेम थिंग, मिरर फार्मूला becomes x1 x2 is equal to minus f square, and this is called Newton's formula. So that is one point. बच्चे ध्यान से देखें, this is your usual mirror formula. पूरी geometrical optics में we are going to measure distance from pole. कहीं कोई confusion नहीं है. एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा अपन ने चेंज देखा, अगर हम डिस्टेंस पोल से ना मेजर करके कहां से मेजर करें? फोकस से मेजर करें. तो ये रहा फोकस. फोकस से अगर अपन मेजर करते हैं तो आप देख रहे हैं ए बी इज द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज इमेज. सो V इज इमेज डिस्टेंस, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब अपन ने यहाँ पे x1 x2 कह दिया. डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? नाउ फोकस इज माय रेफरेंस, पोल की बजाय. सो वी हैव चेंज्ड आवर रेफरेंस पॉइंट. ओरिजिन अपन ने चेंज कर दिया है. तो x1 प्लस f
इज u, x2 प्लस f इज v, और ये मिरर फॉर्मूला में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड अगर आप थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है, x1 x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। Another point which is simple, in most of the questions we are going to calculate image position in most of the questions, so we can rewrite this mirror formula in a convenient form which we are going to use very often, and so that becomes our remark 2. And we can see that we can write over here remark 2. अब आप देखो बच्चे, this is v 1 by u is 1 by f. So if we just rearrange 1 by v is 1 by f minus u, this is u minus f uf. So this gives us v is equal to uf u minus f. Nothing big, but we are going to use it very often. So this I can call it most used expression. तो आप अगर मिरर फॉर्मूले को ऐसे याद रख लेंगे तो it will be more convenient. So you can see product divided by difference, product u into f divided by difference. So we can remember v like this, product डिवाइडेड बाय डिफरेंस। नहीं याद रहे तो बच्चे कोई टेंशन मत लेना, फिर तो अपने को मिरर फॉर्मूला है ही है। आप देख रहे हो ये आया कैसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिड वी गेट दिस थिंग, तो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए याद रहे। तो ऐसे मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो बच्चे इसी फॉर्म में यूज करूंगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस। सो v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f. So this is magnification formula, so mirror formula. So we move to another point, and that is magnification. So let's deal with magnification. Okay. राइट स्टूडेंट्स, सो बच्चे बात करेंगे यहां पर अपन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, magnification formula. So let's see what is magnification first. So the magnification part, magnification, this is defined as a ratio of size of image and object. So it's a ratio of size of image and object. So we can write magnification is equal to, so we denote it by small m, and this is size of image upon size of object. Right students, so this is your magnification. अब हम क्वेश्चंस में दो तरीके की मैग्निफिकेशन की बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन. So one is your transverse magnification, and the second category is longitudinal magnification. डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पर क्या है, साइज इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल में बच्चे जैसे नाम से ही पता चल रहा है, साइज इज मेजर्ड
along principal axis. This is the basic difference. So size is measured along principal axis. Now that's why we can call it this transverse magnification as height of image upon height of object. This is how we can write it. Now coming to this longitudinal magnification, we can write m and there is a small l. So this is length of image upon length of object. तो बहुत क्लियर है बच्चे. सो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड सो दिस इज वी डिनोटेड बाय स्मॉल m. दो तरीके के मैग्निफिकेशन की बात करें. क्वेश्चन में बच्चे लिखा नहीं होगा, वहां पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वर्ड नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन पढ़ के आपको पता करना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी वेरी केयरफुली. ट्रांसवर्स बोले तो साइज इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इधर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन साइज इज मेजर्ड along principal axis and we are writing ml. So this is L is in subscript. Okay, length of image upon length of object. Okay, so again dividing it in two parts. So we continue talking about transverse and longitudinal magnification. So expression for transverse magnification is minus V by U. This is the expression for transverse magnification. And similarly the expression for longitudinal magnification, that is ml, we have, it is like this: VA minus VB upon UA minus UB. So students please do understand very very carefully. अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, दिस इज वन एक्सप्रेशन. आई कैन राइट इट फर्दर यूजिंग मिरर इक्वेशन. अपन ऐसा लिख सकते हैं, दिस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन f ओवर f माइनस u in terms of object distance. This is your transverse magnification, and this is again another expression, and that is f minus v upon f in terms of image distance. दो expressions हैं बच्चे अपने पास. Equation, that is कभी अपन ये यूज करेंगे transverse magnification in terms of object and image distance, in terms of object distance, in terms of image distance, जहां जैसा convenient होगा. Now coming to this part, ये जो आप देख रहे हैं longitudinal, इसको थोड़ा सा समझ लें A और B क्या है. Just मान लिया ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है बच्चे, और ये ऑब्जेक्ट इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज A एंड दिस इज B. अब आप देख रहे हैं दिस विल बी कॉल्ड UA. ये जो ऑब्जेक्ट है एंड A, सिमिलरली दिस विल बी कॉल्ड UB. And what is V? V stands for corresponding image distance. So VA. So A. So we have object. उसके ends क्या है? A and B. So be careful. Longitudinal magnification. Right? अच्छा, अब आप देखो ये कैसे आए. बहुत सिंपल है. आप देख सकते हो 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. अगर आपको याद नहीं रहा तो how you are going to derive it quickly. ये आपको बेसिक है, एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए. आई होप आपने 10th में भी पढ़ा होगा. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. अब आप देखो बच्चे, इसको क्या करो, मान लिया मुझे u के टर्म में लिखना है, तो पूरी इक्वेशन को कहते हैं अपन क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई u. सो ये हो जाएगा v u बाई v, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू u बाई f. 1 को उधर ट्रांसफर करो तो दिस इज v बाई u इज u बाई f माइनस 1. सो दिस इज u माइनस f ओवर f. ओके, अब अगर मुझे मैग्निफिकेशन लिखना है तो मुझे पता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाई u.
तो एक तो बच्चे इसे उल्टा करना है और माइनस साइन यहां पे लगाना है। तो अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं और साइन माइनस कर देते हैं तो इट इज f ओवर f माइनस u। सो दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस। अब आप इस पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करें। सो इफ वी मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन, सो वी गेट 1 अपॉन v बाई u एंड दिस इज v बाई f। तो ये जो v बाई u है एंड दिस इज v बाई f माइनस 1, v माइनस f ओवर f। सो वी नो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाई u and that gives us f minus v over f. So clubbing with mirror formula और mirror equation अपन derive कर सकते हैं फंडामेंटल ये। तो बात कर रहे हैं बच्चे अपन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर स्फेरिकल मिरर। दो बातें संभालनी है, मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है, एक एक टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, और अभी बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, सो एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दो तरीके का हो गया, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में अपन बात करते हैं साइज इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसीलिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। सो वी राइट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर लॉन्गिट्यूडनल में साइज इज मेजर्ड along principal axis, इसलिए लैंग्वेज क्या हो गई बच्चे, ml इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान देना है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये सब बच्चे अपन डिराइव करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड देन विल एंटर इनटू डेरिवेशन आल्सो। ठीक है, तो ये दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू। सो वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, अपने को पता है v और u क्या है। ओके, सो माइनस v बाई यू। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस कहां से आया, वी हैव यूज्ड दिस मिरर फॉर्मूला। क्या किया अपन ने, पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई किया, तो अपने को u के टर्म में आ गया, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को इमेज डिस्टेंस के टर्म में आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्रेशन वो देख लें बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये कैसे लिखा गया, व्हाट इज a एंड b। सो a, तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो a इज वन एंड। से फॉर एग्जांपल ये जो चौक आप देख रहे हैं, दिस इज a, दिस इज b। तो ये जो आप देख रहे हैं ua एंड a का डिस्टेंस कहां से, पोल से, व्हाट इज ub एंड b का करस्पॉन्डिंगली जो va है, जो a की इमेज बनेगी उसका पोल से डिस्टेंस, जो b की इमेज बनेगी उसका पोल से डिस्टेंस, उसको अपन vb कह रहे हैं। और इस फॉर्मूले में एक खास बात ध्यान दें, खास बात बच्चे क्या ध्यान देनी है, अगर यहां a लिया है तो यहां पर भी a लेंगे, यहां b लिया है तो इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So we have talked about mirror formula and magnification formula. Now there are certain very critical points जिनको अपन डिटेल में देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, and then we'll go for problem solving. So ये यहाँ पर अपन देखते हैं बच्चे। So let's go for remarks and let's understand certain critical points जिनको अपने को ध्यान रखना है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मिरर फॉर्मूला में और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ऑल दीज रिलेशंस आर वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेज, ऑल दीज रिलेशंस आर वैलिड फॉर पैराएक्सियल रेज। ओके, राइट स्टूडेंट, तो यहां पे जो पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है। सो रिमार्क्स, पहला पॉइंट ये है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ इमेज is
inverted with respect to object. ये मतलब होगा बच्चे, और कोई मतलब नहीं होगा. आपकी बाजार की किताबों में लिखा हुआ है नेगेटिव बोले तो रियल एंड इन्वर्टेड. नो, दैट इज रॉन्ग. आई एम वेरी वेरी क्लियर. Negative magnification means image is inverted with respect to object, no other meaning. And if it is positive, तो positive will imply image is erect with respect to object. Again, let me tell you, in most of the books available in market, positive का मतलब लिखा हुआ है virtual and erect. No. Drop the word virtual, drop the word real over here. Negative का simple मतलब हो गया image is inverted with respect to object, and positive का मतलब erect. That's the only meaning and interpretation. Second thing that we need to understand over here, if this magnification part, सो मोस्ट यूजफुल एक्सप्रेशन जो मैं आपको लिखना चाहूँगा, मोस्ट यूजफुल एक्सप्रेशन, जिसको आप क्वेश्चंस में, एक तो अभी अभी अपन ने लिखा था यू एफ यू माइनस एफ, दिस इज वन एक्सप्रेशन, एंड मैग्निफिकेशन एफ ओवर एफ माइनस यू. मैग्निफिकेशन के अपन ने 3 एक्सप्रेशन देखे बच्चे. ये एक्सप्रेशन, दीज आर मोस्ट यूजफुल एक्सप्रेशन, यानी इनको क्वेश्चंस में बहुत बार यूज करेंगे, तो याद रहें तो ज्यादा अच्छा है. थर्ड पॉइंट, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट वी कैन राइट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एज dV upon du. So this is basically delta V upon delta U. Mind it, this is for a small object. Longitudinal magnification को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं. तो थोड़ी सी कैलकुलस आ गई. एक बार जरा मिरर इक्वेशन पर आते हैं. 1 by V 1 by U is 1 by F. इसको मैंने डिफरेंशिएट किया थ्रू आउट, तो दिस विल बी माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी माइनस यू स्क्वायर डी यू. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. तो मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों ने 11th में एलिमेंट्री कैलकुलस की होगी, तो प्लीज मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया और पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लिया. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वी बाई डी यू इज माइनस वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर. तो अब आप देख सकते हैं बच्चे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है एम एल इज अप्रोक्सीमेटली एम टी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. आई एम नेग्लेक्टिंग दिस साइन, नेगेटिव साइन को मैंने इग्नोर कर दिया. इग्नोरिंग नेगेटिव साइन. तो ये रिलेशन मैंने कैसे लिखी? न्यूमेरिकली. longitudinal magnification is square of transverse magnification. This is for small object. Negative magnification means image is inverted with respect to object. Positive magnification means image is erect with respect to object, no other meaning. And this is very very important. For small object अपन ऐसे लिख सकते हैं, and ml is equal to mt square, and all these relations are valid for para-axial rays. So that's very very important. यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूँ कि this is longitudinally inverted and say for example I have mobile in my hand, you take up this, if I say this is the object, negative का मतलब इसकी image क्या हो जाएगी? Inverted like this. But suppose if it is like this, मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर ये A है ये B है, इट विल बी लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको उस ढंग से इंटरप्रेट करेंगे. नेगेटिव आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सो विल से इट इज लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड. सो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला.
and mirror formula. Okay, now we know that the radius of curvature of plane mirror is infinite, focal length is 0. तो इसका मतलब एक बात देखेंगे बच्चे, प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज इज सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन हमेशा वहां पे यूनिटी होगा, इसलिए प्लेन मिरर में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया. सो दैट देयर वाज ओनली वन पॉइंट, दैट साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. आज उसको हम लोग समझ सकते हैं. प्लेन मिरर इज अ स्पेशल केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर को भी अपन क्या मान सकते हैं, स्फेरिकल मिरर, जिसकी फोकल लेंथ 0, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट. सो लेट्स क्विकली समराइज. आज के लेक्चर में मैंने कवर किया mirror formula and then we talked about magnification formula. Mirror formula is basically object image distance relation. कुछ नहीं दिया हो तो we always assume कि distances will be measured from pole. उसमें एक खास expression अपन ने देखा था. And what was that special expression? Newton's formula. x1 x2 is equal to minus f square. In Newton's formula, object and image distance is measured from focus. Mirror formula हो या magnification formula हो, known quantities will be substituted with sign. Unknown quantities को अपन कोई sign नहीं देंगे. And negative means inverted with respect to object. Positive means बच्चे erect with respect to object, and this is very special. For small object, longitudinal magnification is square of transverse magnification. Okay, so I just end over here in this lecture. और बच्चे इनको प्रॉपरली एब्जॉर्व कर लें. अगला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अपन एग्जाम्पल्स लेंगे खूब सारे, जिससे कि ये सब जो आज अपन ने बोर्ड पे लिखा है ये ठीक ठीक मेरी खोपड़ी में सेटल हो जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताएं उनको ध्यान दें. सो नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेक अप the application of mirror formula and magnification formula. कैसे इसको numerical problems में अप्लाई करेंगे. ध्यान रखना, क्वेश्चंस में कभी भी longitudinal और ट्रांसवर्स नहीं दिया होगा. क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात हुई है या longitudinal मैग्निफिकेशन की बात हुई है. सो टिल देन बच्चे, see you and let's reconnect in next lecture again. Enough for the day. I hope you are going well and you are safe. अपना ध्यान रख रहे हैं और अपनी स्टडी को पूरे जोर शोर से करना है, ठीक है. एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो यू विल बी हैविंग योर टेस्ट ऑल्सो. शेड्यूल्स वगैरह आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे. इट विल बी ऑनलाइन टेस्ट. राइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.